morning, dear students. In the previous session, we studied about the difference between mass and weight. We also studied the difference between capital G and small g. When we were discussing about the small g, that is acceleration due to gravity, we studied that the value of small g, that is the acceleration due to gravity, changes from place to place. Means the value of small g is not same everywhere. Okay? Then we studied about weight. So by definition, what is weight? Weight is the product of mass into small g. तो उसका मतलब क्या है कि अगर वैल्यू ऑफ g चेंज होती है तो वैल्यू ऑफ वेट भी चेंज होती है. When we talked about the earth, for solving the numericals, for our convenience, we took the value of small g as 9.8. But in reality, value of small g will be different at different places on earth also. क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है. बट दैट डिफरेंस इन रेडियस इज नॉट सो ह्यूज. तो ये जो स्मॉल जी की वैल्यू जो अलग अलग जगह पे अर्थ में हम लेते हैं तो वो 9.8 के आजू बाजू ही होती है. So the value is not hugely different, right? So it is safe to take the value of small g as 9.8 at anywhere on the surface of the earth. Why? Because its value might change by only few decimals. So that won't have a huge impact on your final answer. But today we are going to discuss that what is the weight of an object on moon. So dear friends, radius of moon and radius of earth are not same. तो जो रेडियस सेम नहीं है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g will be different on moon and will be different on earth. So consequently, अगर स्मॉल g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मून पे और अर्थ पे अलग अलग है तो वैल्यू ऑफ वेट विल बी ऑल्सो डिफरेंट. तो समझ में आ रहा है? What I want to explain is that as the value of small g, that is acceleration due to gravity, depends on the radius. Okay? So radius of earth and radius of moon are not the same. तो radius same नहीं है तो उसका मतलब कि value of small g is also not same. And if the value of small g is not same, then value of weight w will also be not same. Why? Because weight w is equal to m into g. तो मास का तो हमको पता है, it is constant. Okay? So the value of mass remains the same. But as the value of small g changes, the value of weight also changes. Okay? Now, when we derived the equation for universal law of gravitation, तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी? Every object in the universe attracts every other object with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Using that statement, we derived this equation, that is force F is equal to gmm upon r square, where capital G is universal gravitational constant, m is the mass of first object, small m is mass of another object, and r square, that is the distance between them. ठीक है? Now, yesterday we studied about weight. तो weight of an object, उसकी definition क्या थी? It is the force with which it is attracted towards the surface of the earth. यानी कि you can replace this force F with weight W, both are one and the same. Okay? So by the definition of weight, we can write that weight of an object can be found out using formula gmm upon r square. अभी मुझे सेम ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड करना है ऑन मून एंड अर्थ. I want to compare the weight of an object when it is measured on the surface of the earth and when it is measured on the surface of the moon. तो मुझे यहाँ पे दो W फाइंड करना पड़ेगा. Wm that is weight on moon and We that is weight on earth. तो इसी फॉर्मूला में मुझे फाइंड फर्स्ट करना है weight on moon. It is represented as Wm. इसी फॉर्मूला में मैंने m लिखा है क्योंकि मैं फाइंड कर रहा हूँ weight on moon. So Wm is equal to G. Capital G is universal gravitational constant, so its value on moon or earth will be same. तो यहाँ पे gm लिखने की जरूरत नहीं है. G is same as it is m.
हियर m हम वेट कहां पे कर रहे हैं, ऑन मून, सो mm represents mass of moon, ठीक है, and this m represents the mass of an object whose weight we want to find out, ठीक है। तो अगर मुझे मेरा वेट फाइंड करना है मून पे, तो ये जो स्मॉल m है दैट इज माय मास, ओके। तो जिस ऑब्जेक्ट का आपको वेट फाइंड करना है दैट मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m एंड कैपिटल M, और उसके नीचे जो सुपरस्क्रिप्ट में है स्मॉल m दैट इज मास ऑफ मून, सो दैट इज कैपिटल G into mass of moon into mass of object upon rm square, rm यानी रेडियस ऑफ मून। तो डिफरेंस भी यहीं पे आएगा, रेडियस ऑफ मून एंड मास ऑफ मून आर डिफरेंट फ्रॉम द रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ, सो बोथ द वैल्यूज ऑफ वेट विल बी डिफरेंट। सो वंस अगेन हमने कौन सी फॉर्मूला का यूज किया, द फॉर्मूला दैट वी डिराइव्ड ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, force F is equal to Gmm upon r square. This force is nothing but the weight of an object, okay, so W is equal to Gmm upon r square. First I am finding the equation for finding weight on moon, so Wm, that is weight on moon, is equal to G. G is universal gravitational constant, so G remains as it is. M की जगह mass of first object, तो यहाँ पे हम mass of moon लेंगे, so mm into mass, जिस ऑब्जेक्ट का हमको वेट फाइंड करना है दैट इज स्मॉल m अपॉन rm स्क्वायर, दैट इज रेडियस ऑफ मून होल स्क्वायर। सिमिलरली आई वांट टू फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, आई हैव रिप्रेजेंटेड एज we, we मींस वेट ऑन अर्थ। अगेन g तो वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि s कैपिटल G रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू मून पे भी सेम है, अर्थ पे भी सेम है, ठीक है, सो दैट g रिमेन सेम। नाउ यहां पे हम वेट कहां पे मेजर कर रहे हैं, ऑन अर्थ, सो me दैट इज मास ऑफ अर्थ इनटू m, मास ऑफ ऑब्जेक्ट का सेम ही रहेगा वेदर इट्स ऑन मून और अर्थ, सो दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट whose weight we want to find on the surface of the earth upon r square, that is radius of earth whole square, okay। So this Wm represents the weight of an object measured on moon, whereas We represents weight of an object measured on the surface of the earth. Now when you take this ratio, that is Wm upon We, and put these values, we know the value of capital G, mass of moon will be given, mass of object upon r, तो यहाँ पे अगर आप रेशियो लेंगे तो mass of object तो सेम है, तो ये G और ये G कट हो जाएगा, ये m और ये m भी कट हो जाएगा, so when you take these ratios, that is mass of moon upon radius of moon divided by mass of earth upon radius of earth, your answer will roughly come 1 upon 6. So as these values are quite complicated, ये 10 के पावर में आते हैं, तो इसका कैलकुलेशन करना नहीं आता है, but you have to remember that when you substitute these values of mass of moon, mass of earth, radius of moon and radius of earth, the ratio will come 1 upon 6. उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करते हो अर्थ पे और मून पे, तो जो मून पे उसका वेट आएगा वो अर्थ के वेट से 1/6 होगा। इन अदर वर्ड्स, इफ माय वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 600 न्यूटन, देन माय वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, अगर मैं अपना वेट मून पे जाके करूंगा दैट विल बिकम 100 न्यूटन। व्हाई 100 न्यूटन? बिकॉज़ द रेशियो वेट on the surface of moon upon weight on the surface of earth, that ratio is 1 upon 6। तो आपको क्या रिमेंबर करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट अर्थ के सरफेस पे होता है वो अगर आप मून पे करोगे तो उसकी वैल्यू 1/6 हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। उसका मतलब क्या है कि दैट वैल्यू हैज टू बी डिवाइडेड बाय 6, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगेन ये डेरिवेशन है वो एग्जाम में नहीं आएगा बिकॉज़ एज आई सेड दैट दिस डिजिट्स आर क्वाइट बिग एंड इट्स very difficult. I say it's impossible to solve it without using of calculators, and as calculators are not allowed, so this kind of sum won't be asked. But the final result you have to remember that says that weight of object on moon is 1/6 the weight of object on earth। उसका यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो अगेन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून is 1/6 the weight of object on earth। और उसका ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर आपको weight of object on moon दिया हुआ है और अगर अर्थ का
अर्थ के ऊपर उसका वेट फाइंड करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 6, और अगर उल्टा है तो इट्स 1/6, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली, ओके। उसी का यूज करके आगे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। सो लेट अस सॉल्व वन सच एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल 10.4। व्हाट डज एग्जांपल 10.4 से? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, इफ इट इज asked only for 1 marks. Why 1 marks? Because calculations and logic is very very simple. Let us understand. Mass of an object is 10 kg. कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमको दिया हुआ है 10 kg. What we have to find? What is its weight on earth? तो अगर उस ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है तो उसका वेट क्या होगा? तो वेट की फॉर्मूला हमने कल डिराइव की थी, वेट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्मॉल g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि मास की वैल्यू दी हुई है हमको 10 kg, सो 10 की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया 10 इनटू स्मॉल g. सो व्हाट इज एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, then the safe value to be taken is 9.8. So small g is taken as 9.8. So 10 multiplied by 9.8 is 98 Newton. Why? Because weight का जो यूनिट है वो है न्यूटन और मास का जो यूनिट है वो है kg. So I hope you understood this concept very very well, because this concept will be helpful to you in solving the numericals also. Okay, so after learning the difference of weight of an object measured on Moon and Earth, we solved example 10.4. Example 10.5 is also very similar, very easy one. So what you need to do is solve that example 10.5 on your own, and whatever answer you get, write it in the comment box below the video. Now let us move to the next topic, that is thrust and pressure. Generally, again, just like mass and weight, this thrust and pressure, these two words seem to be having the same meaning, but both don't have the same meaning. So what is the difference? So first of all, let us understand what is the exact definition of thrust. Before we discuss, let us think about certain phenomena that we see in our everyday life. What is the reason behind those things? Why can camel run easily in desert? डेजर्ट में जो सैंड होती है उस पे जो कोई कैमल होता है, इट कैन रन एंड वॉक वेरी इजीली, whereas human beings or for that case any other animals are not that comfortable moving around in the desert sand. So what is the reason? The reason behind it is that the feet of camel have a broader base. तो उस broader base की वजह से होता क्या है कि उसके जो लेग्स हैं वो सैंड में अंदर धंस नहीं जाते. ओके, इफ यू स्टार्ट रनिंग ऑन द सैंड, देन व्हाट हैपेंस? योर लेग्स गेट डीप इनटू द सैंड, एज अ रिजल्ट यू आर नॉट एबल टू मूव दैट फ्रीली. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द वेट ऑफ योर बॉडी, योर फीट गेट डीप इनटू द सैंड. तो कैमल का वेट तो हमसे भी ज्यादा होता है, कैमल के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? उसके दो रीजन है. कैमल इज हैविंग 4 feet, so the weight of camel gets divided onto these four different feet. Secondly, as the feet of camel have a broader base, तो जो उसका वेट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैमल के जो लेग्स है वो सैंड में उतने डीप नहीं जाते जितने की हमारे. सेकंड, Why heavy vehicles have wider tires? तो आपने डिफरेंट व्हीकल्स को कंपेयर कर लो. साइकिल होती है उसके टायर बहुत ही पतले होते हैं, उससे आगे जाओ स्कूटर के उससे ज्यादा होते हैं बड़े, कार के देखो तो उससे ज्यादा ब्रॉडर होते हैं. तो जैसे जैसे ही द वेट ऑफ व्हीकल इंक्रीजेस, उसके जो टायर्स होते हैं वो हमको ब्रॉडर रखने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि जितने ब्रॉडर टायर्स होंगे उतना जो कार का जो वेट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अदरवाइज व्हाट विल हैपन इफ दे आर हैविंग अ वेरी थिन टायर्स? तो या तो वो पूरे व्हीकल के वेट को सहन नहीं कर पाएंगे, या तो फिर सैंड वगैरह में वो अंदर घुस जाएंगे. ठीक है, सेम पे ट्रैक्टर,
आपने ट्रैक्टर का देखा होगा कि उसके जो पीछे वाले टायर्स होते हैं वो काफी ब्रॉड होते हैं, क्यों? बिकॉज जनरली ट्रैक्टर इज यूज्ड इन द फील्ड्स, और फील्ड्स में जो लूज सैंड होती है, ठीक है, तो आप फील्ड में ट्रैक्टर को इजीली चला सकते हो, लेकिन स्कूटर को, बाइक को, अपने एक्टिवा को, और फॉर दैट केस इवन कार को भी इजीली नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि ये जो सारे व्हीकल्स है उसके टायर्स जो होते हैं वो ट्रैक्टर के टायर्स के कंपैरिजन में उसके जो बेस होते हैं, उसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है, ठीक है। सो हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, एज वी डिस्कस, ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉडर टायर्स। क्यों ब्रॉडर टायर्स होते हैं? आपने ये भी देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी ट्रक्स होती है उसमें वो सिंगल टायर्स नहीं होते, वो दो टायर्स को साथ में लगाते हैं। उसके पीछे भी रीजन यही है कि वो जो ट्रक जो काफी हैवी है उसके वेट को वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, जिसकी वजह से उसका मोशन स्मूथली हो। थर्ड, व्हाई कटिंग टूल्स हैव शार्पर एजेस। आप नाइफ का ही एग्जांपल ले लो, नाइफ के 2 एजेस होती है, वन शार्प एज होती है और उसकी जो ऑपोजिट एज पे होती है वो ब्लंट होती है। यू टेक एन एप्पल, इफ यू ट्राई टू कट इट विद द शार्पर साइड इट विल बी वेरी इजी, ओके। शार्पर साइड से अगर आप एप्पल को कट करोगे तो इजीली होगा, लेकिन अगर आप उसके ऑपोजिट साइड जो कि ब्लंट है, जो शार्प नहीं है, उस एज से अगर आप एप्पल को कट करने का ट्राई करोगे तो वो इजीली कट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सरफेस एरिया कम होता है तो उस पे फोर्स ज्यादा लगता है, ठीक है। साइकिल के टायर कम है, उसका सरफेस एरिया कम है, तो वो जमीन में धंस जाएगी क्योंकि उस पे फोर्स ज्यादा लगेगा। बट ट्रैक्टर है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उस पे जो फोर्स लगेगा वो कम होगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। समझ में आ रहा है? तो बाय द सेम लॉजिक आप एक पिन का भी एग्जांपल ले सकते हो कि जब आप किसी बोर्ड पे आपको पिन से कुछ पेपर वगैरह, नोटिस वगैरह लगाना होता है, ठीक है, तो पिन की जो शार्प एज है वो तो इजीली अंदर बोर्ड में चली जाती है, बट इफ यू ट्राई टू इमर्ज द ऑपोजिट साइड वो इजीली नहीं होगी, ठीक है। तो जो एक सेफ्टी पिन है वो बोर्ड में इजीली चली जाती है, लेकिन आप नेल लोगे तो नहीं होगी, क्योंकि नेल की एज वो सेफ्टी पिन से उसकी एज से ज्यादा होगी। इन शॉर्ट हमको याद क्या रखना है कि जितना सरफेस एरिया कम होता है उतना उस पे जो थ्रस्ट का और जो फोर्स लगता है उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर स्कूल बैग्स आल्सो, ठीक है। अगर आप स्कूल बैग्स में 10-15 नोटबुक्स वगैरह लेके आते हो तो काफी हैवी हो जाती है, तो यू माइट हैव सीन दैट द स्ट्रैप्स ऑफ योर स्कूल बैग्स आर क्वाइट ब्रॉड। तो ये जितनी ब्रॉड होगी उतनी आपके शोल्डर में पेन कम होगा। ऑपोजिट टू इट, अगर उस जगह स्ट्रैप की जगह पे पतली स्ट्रिंग्स दी हुई है और अगर आप फिर उसको कैरी करोगे तो जो सारा बैग का जो वेट है वो बहुत ही कम एरिया पे आएगा एंड यू विल हैव पेन ऑन योर शोल्डर्स। सो लुकिंग एट these examples on the board, I also explained certain examples from our day-to-day life. What we need to remember that the effect of the thrust, the effect of the force depends on the surface area. वो कैसे डिपेंड करता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। So first of all, let us understand what is the meaning or what is the definition of thrust. So thrust can be defined in this way: the force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. अगर मैं एक पिन लेके इस बोर्ड में अंदर डालने का ट्राई करता हूं तो मैं जो फोर्स अप्लाई करता हूं दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो इन शॉर्ट आई एम अप्लाइंग द थ्रस्ट, ओके। व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द सैंड तो आपका जो लेग है वो प्रेशर अप्लाई कर, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, सो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ थ्रस्ट। सो वंस अगेन, व्हाट इज थ्रस्ट? The force acting on an object perpendicular to the surface is called the thrust. ये बात हुई थ्रस्ट की। तो अगर सेम थ्रस्ट या सेम फोर्स लगता है तो उसके इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्पल को आप कट कर रहे हो यूजिंग द शार्पर साइड और यूजिंग द ब्लंट साइड, दोनों में अगर आप फोर्स सेम अप्लाई करोगे रिजल्ट सेम नहीं होगा। When you are applying the force using the sharper side, your apple will be cut easily. But when you are applying the same force using the opposite side, that is the blunt side, the result won't be the same. The apple won't be cut easily. Okay? So we need to learn about another term, which is pressure. Effect of thrust depends on the area on which it acts. Okay? So what is pressure? Definition of pressure is like this: the thrust on unit area is called pressure.
तो जैसा कि मैंने बताया कि दो ऑब्जेक्ट पे अगर थ्रस्ट सेम लग रहा है, बट जिस एरिया पे लग रहा है उसका यूनिट एरिया अगर डिफरेंट है तो उसका इफेक्ट भी अलग होगा, ठीक है। सो दैट इफेक्ट इज नोन एज प्रेशर. सो प्रेशर इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया. ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. सो इन शॉर्ट यू कैन राइट प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. तो ये जो एरिया जितना ज्यादा होगा उतना प्रेशर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि एरिया डिवीजन में है, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू, जो सरफेस एरिया जिस पे ये थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है, वो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना उस पे प्रेशर कम लगेगा. यू कैन थिंक ऑपोजिट आल्सो. एरिया की वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी उतनी प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी. सो द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट विल बी लार्जर व्हेन एरिया इज स्मॉलर. ओके, now let us derive the SI unit of pressure. Thrust is a kind of force, और force को हम किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं? Force is measured in Newton. So thrust उसका यूनिट है न्यूटन, एरिया उसका SI यूनिट है मीटर स्क्वायर. So SI unit of pressure, by just putting the SI units of thrust and area, will be Newton per meter square. So once again SI unit of pressure is Newton per meter square. हमने डिराइव किससे किया? We derived it from the SI units of thrust and area, because pressure is nothing but ratio of thrust upon area. Thrust measured in Newton, area measured in meter square. So SI unit of pressure is Newton per meter square. But in the memory of scientist Pascal, certain times it is also measured in Pascal. So you can measure pressure in either Newton per meter square or Pascal. The symbol of Pascal is PA, where P is capital and A is smaller.